Hello everyone, welcome to Teaching Info channel. Today's video is a mega revision of English grammar, specially made for Jawahar Navodaya Vidyalayas, KVS Kendriya Vidyalaya Sangathan and 10th State Board student Maharashtra. This video is collaboration with Navodaya online classes. So, big thanks to them for supporting this helpful session. In this mega revision, we will quickly revise all the important grammar topics like part of speech, tense, active and passive voice, conjunction, preposition, and many more. This is not a boring theory. We will shortly use tricks, example, and practice question to make sure you understand everything clearly. If you like this video, please like, share, and subscribe to Teaching Info YouTube channel. Also, check out Navodaya online classes. Link is in the description box. Let's begin our English grammar mega revision. Get your notebook and pen ready. Let's go. Here is the first topic, articles. There are two types of articles, indefinite article, definite article. First one is here, indefinite article. Let's see what is the definition of indefinite article. These are used when talking about something specific or not known to the listener. इंडेफिनाइट आर्टिकल में अ एंड एन ये दो आर्टिकल्स आते हैं. अ आर्टिकल कब यूज करना है हम यहाँ पे देखेंगे. लेट मी चेंज द कलर. अ is used before words that began with a consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड्स चालू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स ए आई ई ओ यू, इनको छोड़ के जो वर्ड्स चालू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, उस टाइम उस जगह पे हमें अ आर्टिकल यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल अ कार, अ हाउस, अ यूनिवर्सिटी. अ यूनिवर्सिटी, लेट्स सी. University starts with U, pronunciation as like U sound, a consonant sound. I saw a dog in the park. We don't know which dog. According to definition, let's see. According to definition, I saw a dog in the park. We don't know which dog. हमें पता नहीं कौन सा डॉग है, लेकिन डॉग के पहले हमने ए आर्टिकल यूज किया है. डेफिनेशन क्या कहती है? समथिंग नॉट स्पेसिफिक. यहाँ पे डॉग स्पेसिफिक नहीं है, और नॉट नोन टू द लिसनर, और जो सुन रहा है उसे ही डॉग का पता नहीं है. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी क्रिएटेड सम एग्जाम्पल एंड सम वर्ड्स विथ स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट. लेट्स सी where is an is used. An is used before words that began with a vowel sound. Vowel sound मैंने बताया था, ए आई ई ओ यू. ये जो वॉवल्स है, इससे शुरुआत होने वाले वर्ड्स के पहले हम indefinite article an यूज करते हैं. Here is one example, an apple. Because apple start with vowel a I e o u. These are vowels. An hour. An hour. Hour starts with a silent h, vowel sound.
यहाँ पे आवर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें यच साइलेंट है और हमें आवर की तरह वो प्रोनाउंस करना पड़ता है. आवर, OUR, आवर. That's why we use an article before our. An umbrella. Examples: she ate an orange for breakfast. She ate an orange for breakfast. यहाँ पे आर्टिकल यूज हो गया है एन. उसकी वजह यह है कि ऑरेंज में जो ओ स्टार्ट हो रहा है इसका वॉवेल है AIEOU. इन 5 वॉवेल से वो वर्ड चालू हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एन ऑरेंज आ गया है. सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट में सिर्फ एक ही बंदा है, द. The is used when we are talking about something specific or already known to listener. Something specific, कुछ तो है और जो है वो सुनने वाले को पता है. That's time we use definite article the. Use the when both speaker and listener know what is being talked about. किसके बारे में बात की जा रही है ये दोनों को ही पता होना चाहिए. दोनों जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों बंदों को पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है. दैट टाइम वी यूज दैट द आर्टिकल. सम एग्जाम्पल्स आर हियर. I closed the door. बोथ नो विच डोर. सुनना और बोलना, सुनने वाला और बोलने वाला, इन दोनों को ही पता है कि कौन सा डोर बंद करना है. दैट्स वाई वी यूज द आर्टिकल हियर. डिड यू फीड द डॉग. डिड यू फीड द डॉग. अ स्पेसिफिक डॉग ऑलरेडी नोन. जो डॉग, हम कौन से कुत्ते को खाना खिला सकते हैं क्या? नहीं, खिला सकते हैं, लेकिन हमें वो कुत्ता पहचान का होना चाहिए. डिड यू फीड द डॉग, यहाँ पे हमने द डॉग, डॉग के पहले हमने द आर्टिकल यूज किया है. सम अनदर रूल्स फॉर द आर्टिकल. यूज द व्हेन समथिंग इज यूनिक और देयर इज ओनली वन ऑफ इट. द कब यूज करना है? ऐसी चीज जो दुनिया में यूनिक हो, इकलौती चीज हो. बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, ये चीजें इकलौती चीजें हैं इस दुनिया में. हमारा गांव, हमारा स्टेट इस दुनिया में इकलौता है. यूज द when something is unique or there is only one of it. Example: the sun rises in the east, the moon is bright tonight, the earth orbits the sun. जो चीज़ें दुनिया में हमें एक ही वन एंड ओनली, उस टाइम हम द आर्टिकल यूज करते हैं. सेकंड रूल क्या कहता है देखिए. यूज द व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. ऑलरेडी मेंशन किए वाली चीज को हमें दोबारा लिखना है तो उस टाइम हम द से शुरुआत करते हैं. यूज द व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिया है. शी बॉट अ ड्रेस. She bought a dress. The dress was red. But फंडा क्या है? उस सेंटेंस में वो ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए. उसी सेंटेंस में ड्रेस इस सेंटेंस में मेंशन है ऑलरेडी. दैट्स वाई वी यूज द ड्रेस फॉर अगेन. ड्रेस ऑलरेडी मेंशन असल्यामुळं आपण त्या ठिकाणी द ड्रेस वॉज रेड असा आपण त्याचा उल्लेख केला.
Use the with superlative ordinal numbers. Superlative ordinal number. Example, he is the best player. This is the first time I have been here. पांचवा रूल जो है वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है. यूज द विथ नेम्स ऑफ ओशंस, सी, रिवर्स. द कब यूज करना है? विथ नेम्स ऑफ ओशन, सी, रिवर्स. द पैसिफिक ओशन, द नाइल, डेजर्ट, माउंटेन रेंज. द हमें वहाँ भी यूज करना है. द सहारा, द हिमालयाज. ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड और कंट्रीज. द फिलीपाइंस, द नेदरलैंड. फेमस बिल्डिंग्स, द आईफिल टावर, द ताजमहल. न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स, द हिंदू. इस जगह पे हमें द आर्टिकल यूज करना है. अब हमने देखा कि कहाँ कहाँ यूज करना है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. डू नॉट यूज द विथ. द कहाँ नहीं यूज करना है? जनरल नेम्स ऑफ पीपल, कंट्री, लैंग्वेज और मील्स. जनरल नेम्स ऑफ पीपल, कंट्रीज, लैंग्वेजेस, द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी. खाना, द जो मील्स रहता है खाना, वह उस टाइम उस शब्द के पहले हमें आर्टिकल यूज नहीं करना. आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. आई लाइक इंग्लिश, नॉट द इंग्लिश. वो क्या कह रहा है कि मुझे इंग्लिश पसंद है. लेकिन बबुआ हम गलती कर देते हैं, द इंग्लिश बोलते बोलते कह जाते हैं. We had lunch at noon. Most cities and towns. I live in Mumbai, not the Mumbai. हम मुंबई में रहते हैं. द वहाँ भी यूज नहीं करना है. मोस्ट ऑफ सिटीज. लास्ट क्या है देखते हैं. नो आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग जनरली. नो आर्टिकल कहाँ? अनकाउंटेबल नाउन्स when speaking generally. Water is essential for life, not the water. Sugar is sweet, but use the if you are referring to specific uncountable things. The water in this bottle is cold. The water in this bottle is cold. The information you gave was helpful. आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो हेल्पफुल है. थर्ड पॉइंट क्या है? नो आर्टिकल विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग जनरली. नो आर्टिकल विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, नॉट द डॉग्स. खाली डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स. मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं? द डॉग्स कर देते हैं. टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट यूज द इफ यू मीन स्पेसिफिक ओशन, स्पेसिफिक वन्स. स्पेसिफिक वन्स एखाद्या गोष्टीला स्पेसिफिक वन्स असेल त्यावेळेस द डॉग्स इन द पार्क आर बार्किंग, त्यावेळेस द येऊ शकतं. नो आर्टिकल बिफोर मील्स, डेज अँड मंथ्स वेन स्पीकिंग जनरली. वी ईट ब्रेकफास्ट ॲट 8 AM. आय विल कम ऑन मंडे. ही वॉज बॉर्न इन जुलै. बट यूज द वेन यू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक वन. Okay, let's see second topic, noun definition, types and example. Definition of noun. क्या है noun की definition? A noun is a word that names a person, place, things or idea.
नाउन क्या है? एक वर्ड है जिसे हमने खुद आदमी ने, ह्यूमन ने नाम दिया है। दुनिया का कौन सा भी नाम हम लोगों ने ही दिया है। सो लेट्स सी, नाउन इज अ वर्ड दैट मीन्स, that names a person, place, thing और idea। किसी व्यक्ति का, जगह का, थिंग्स चीज़ों का, आइडिया सोच का जो हमने नाम दिया है उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, लेट्स सी, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। पर्सन, टीचर, डॉक्टर, रिया, ये जो है पर्सन्स के नाम हैं। प्लेस, स्कूल, सिटी, इंडिया, ये प्लेसेस है। थिंग्स, टेबल, फोन, पेन, ये चीज़ें हैं। आइडिया, ऑनेस्टी, लव, फ्रीडम, ये भी हमने दिए वाले नाम हैं। सो ओवरऑल व्हाट इज द मेन कंसेप्ट? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ये है नाउन। There are some types of noun. Let's see one by one. Number 1, common noun. Common noun. General names of people, place or things. General, किरकोळ, साधे सिंपल ठेवलेले नाव. जनरल, मुलगा, मुलगी, अशा प्रकारे. गर्ल, सिटी, बुक. Not typical book, not a typical girl, not a typical city. म्हणून त्या ठिकाणी आपण म्हणलेलं आहे कॉमन नाउन. कॉमन. जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स called common noun. There are some examples: girl, city, book. Second type is proper noun. Specific names always capitalized. स्पेसिफिक नेम, विशेष दिलेले नावं, आईवडिलांनी तुम्हाला दिलेले विशेष नावं, पण ते विशेष नावं कॅपिटलाइज्ड असावे. त्याचं पहिलं अल्फाबेट कॅपिटल असावं. एक्झाम्पल, रिया, या ठिकाणी रियाचं जे आर आहे ते कॅपिटल आहे. मुंबई, मुंबईचं जे यम आहे ते कॅपिटल आहे. मंडे, मंडेचं जे यम आहे ते कॅपिटल आहे. Yes, next, abstract noun. Names of ideas, feelings और qualities. Abstract, अमूर्त संकल्पना, जो हम खाली सोच सकते हैं, सोच सकते हैं. Cannot touch or see, हम उसे टच नहीं कर सकते और हम उसे देख नहीं सकते, वो खाली हम सोच सकते हैं. Names of ideas, thing, ideas, feelings और qualities. जो आइडियाज़ है, फीलिंग्स है और जो क्वालिटीज़ है, दैट टाइम वी सेज दैट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एग्जाम्पल्स, ब्रेवरी, काइंडनेस, ब्यूटी. ब्रेवरी हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते. काइंडनेस को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. ब्यूटी को हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. और है, और यहाँ पे और है, और. ओके. नेक्स्ट टाइप इज कॉन्क्रीट नाउन. थिंग्स यू कैन सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल. जो चीज़ें तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल ले सकते हो, उसे कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है. कॉन्क्रीट नाउन. एग्जाम्पल, एप्पल, डॉग, म्यूजिक. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. A word that names a group of people. A word that names a group of people or things, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. किसे, जिसमें लोगों का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ पीपल, और थिंग्स, जो चीज़ें हैं उनका ही ग्रुप होना चाहिए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. हियर इज वन
2, 3 examples. Team, bunch, class is called as collective noun. Next type of noun, countable noun. काउंटेबल, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा है. देखिए काउंटेबल नाउन क्या कहता है, कैन बी काउंटेड, सिंगुलर है या प्लूरल है, हम उसे गिन सकते हैं. एग्जाम्पल, कार, बुक्स, पेंसिल, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हम बता सकते हैं किसमें, काउंटेबल नाउन में. Another one is uncountable noun. Cannot be counted individually. हम उसे काउंट नहीं कर सकते इंडिविजुअली. एग्जाम्पल, मिल्क, राइस, वाटर. इसे हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, उसी के लिए वजह से हम कहेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन है. Okay, it's a fast revision. Already I taught same topics in our summer vacation, so it's a revision lecture, and don't take tension if you feels that I am taking so fastly, because already taught to you. Okay. सेकंड टॉपिक, नेम्ड प्रोनाउंस. जो हमने क्लास में लिया है वही मैं रिवीजन ले रहा हूँ. सो ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन नवोदय वाला प्लेटफॉर्म, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर. प्रोनाउंस क्या है, चलो देखेंगे. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स. किसकी जगह ले रहे हैं, वो जगह ले रहे हैं नाउन की. नाउन्स, प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन that is already mentioned in sentence. Pronouns are words that are used to take the place of nouns. किसकी जगह ले रहे हैं, नाउन्स की जगह ले रहे हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर. प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन. किसका रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन. पॉइंट नंबर 2 क्लियर. और कौन से, नाउन दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन सेंटेंस. जो नाउन ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन किया है उसी का रिपीटेशन हमें नहीं करना, इसलिए हम प्रोनाउंस वहाँ पे यूज करते. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रेनू टीचेस अस हिंदी. मिस रेनू टीचेस अस हिंदी. शी टेल्स अस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस लैंग्वेज. रीनू नाम की एक महिला है और उसका रिपीटेशन, रीनू क्या है, रीनू नाउन है और उसका रिपीटेशन यहाँ बचाने के लिए, टालने के लिए हमने शी यूज किया. शी, और उस शी को ही कहते हैं प्रोनाउंस. समीर इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल. समीर नहीं आया आज. क्यों नहीं आया, बिकॉज वो आजारी था, वो बीमार था. ओके, ये है पूरा प्रोनाउंस का डेफिनेशन. एग्जाम्पल, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन सेंटेंस. ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स सी वन बाय वन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस. Such pronouns stand for a person or thing. Personal pronouns किसके लिए स्टैंड होते, पर्सन और थिंग्स के लिए स्टैंड होते. पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 person such as first person singular I, me, plural we, us. Example, the dogs are running behind me. मेरे पीछे कुत्ते भाग रहे. सेकंड पर्सन सिंगुलर you, प्लूरल you. एग्जाम्पल, you are an Australian.
ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, हर, हिम. प्लूरल क्या आएगा? दे, देम. ये हो गया पर्सनल प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस क्या है? सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पजेशन ओव्हर समथिंग. मालकी हक्क कशावर तरी दाखविणे त्याला म्हणायचं पजेसिव प्रोनाउंस. सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पजेशन ओव्हर समथिंग. पजेशन, माझं आहे हे म्हणणारे प्रोनाउन्स आहेत पजेसिव्ह. पजेसिव्ह प्रोनाउन्स हॅव सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स. ह्या प्रोनाउन्सला सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स देखील आहेत. फर्स्ट पर्सन माइन, पजेसिव्हनेस आहे माइनमध्ये. प्लुरलमध्ये काही आवर्स. सेकंड पर्सन युअर्स, त्याचं प्लुरल फॉर्म सेम तसाच राहील युअर्स. थर्ड पर्सन हिज, हर्स, त्याचं प्लुरल होईल देअर्स. एक्झाम्पल्स आहेत इथं. दॅट सेलफोन इज नॉट माइन. माझा नाही, मालकी हक्क बी आहे. माझा नाही पजेशन आहे ते दाखविण्यासाठी माइनचा यूज झाला आणि माइन ह्या ठिकाणी आहे पजेसिव्ह प्रोनाउन. दॅट बिग हाऊस इज देअर्स. दॅट अ बिग हाऊस इज देअर्स. नेक्स्ट प्रोनाउंस का टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है. किसका हो रहा है? लेट्स सी. सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और पॉइंट थिंग्स एंड पर्सन. रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं. एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन. वो कार किसकी है? डेमोन्स्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है. दिस कार इज माइन. दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. दोज फ्लावर्स. Sometimes demonstrative pronouns are used for comparison also. ये जो demonstrative pronouns है, demonstrative, इसका यूज़ कंपैरिजन के लिए भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है. तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे, दिस इज लाइटर देन दैट. दिस इज लाइटर देन दैट. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस. Such pronouns are used to refer to some nouns mentioned earlier in sentence. Such pronouns are used to refer to some nouns mentioned earlier in sentence. जो सेंटेंस में नाउन है मेंशन किए वाले, उनका रेफरेंस वहाँ पे आता है. एग्जाम्पल, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई कजिन. ये बॉय और इसका कुछ तो रिलेशन है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जा रहा है. आई सॉ द कैट विच ड्रैंक द मिल्क. ओके. नेक्स्ट है इंडेफिनाइट और indefinite pronouns. Such pronouns are used to refer to person or things in a general or indefinite way. उसका एग्जाम्पल है, everybody knows Mr. George very well. Something is better than nothing. Indefinite pronouns है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये प्रोनाउन? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल, हुज इज दिस बुक. ये किताब किसकी है? हुम आर यू गोइंग विथ. आप किसके साथ जा रहे हो? ये प्रोनाउंस हमें क्वेश्चन फिल करते हैं, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड emphasis on the subject. Emphasis on the subject, प्रभाव टाकतात. एक्झाम्पल, ही हिमसेल्फ ॲडमिटेड हिज मिस्टेक. एम्फॅटिक प्रोनाउन्समध्ये बघितलं तर ते वाक्यामध्ये काहीतरी परिणाम घडवून आणतात. ही हिमसेल्फ ॲडमिटेड हिज मिस्टेक. आय मायसेल्फ डिड ऑल द वर्क. Okay, function example. These are some examples of pronoun function
and example. I provide the PDF to all my student. Please read this examples function. Okay, यहाँ पे एक अच्छा सा स्केच है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. स्पेसिफिक, इसको आई दिया है, इसको वी दिया है, इसको दे दिया है, दे दिया है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. पजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप और पोजेशन. वो लड़की कह रही है ये मेरी आइसक्रीम है, इसे मत छुओ. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल. दिस और दैट का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं. इनडेफिनाइट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. जो स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए इनडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज किए जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी टॉपिक नंबर 3. टॉपिक नंबर 3 प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. Let's see the definition of preposition. A preposition is a word used to link nouns. क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है nouns को, pronouns को और phrase को to other words within a sentence. Preposition क्या कर रहा है? Preposition is a word used to link nouns, pronouns और phrases to other words within a sentence. जो other words है sentence के अंदर ही उसको वो लिंक कर रहा है. दे यूजुअली डिस्क्राइब रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कॉज, मैनर एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी. इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज. फ्रेज का मतलब मैंने बताया था क्लास में, अ वर्ड, a group of word called phrase. A prepositional phrase typically includes the preposition, its object, a noun or pronoun, any modifiers of the object. She sat on the wooden bench. Preposition on, object, bench, modifier, the wooden. Now let's see, this is important point according to our class. कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की क्या क्या कैटेगरीज है? पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस उसमें क्या है? शो लोकेशन और पोजिशन ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल्स इन, ऑन, एट, अंडर, ओव्हर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड. प्रॉपर लोकेशन ह्या शब्दामधून आपल्याला भेटतं, त्यामुळे याला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन म्हणतात. द बुक इज ऑन द टेबल. प्रॉपर त्या बुकचं लोकेशन आपल्याला भेटत आहे ऑन या प्रीपोजिशनमुळे. शी सॅट बिटवीन हर फ्रेंड्स. ती कुठं बसली आहे त्याचं प्रॉपर लोकेशन आपल्याला भेटत आहे बिटवीन या प्रीपोजिशनमुळे. ओके. नेक्स्ट टाइप आहे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो समय की बात करते हैं. इंडिकेट टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप. एग्जाम्पल्स एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अंटिल. इसमें रिलेशन क्या है? टाइम का रिलेशन. वी विल मीट एट 5 PM. हम कब मिलने वाले? हम 5 बजे मिलने वाले. ही वॉज बॉर्न इन जुलाई. इन जुलाई टाइम ट्रैवलिंग हो रहा है. दैट्स वाई वी सेज दैट दिस इज एन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. Fourth one is a preposition of direction, movement. Show movement from one place to another. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मुवमेंट जर
दाखवायची असेल एक, त्यावेळेस आपण प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किंवा मुवमेंटचा वापर करतो. एक्झाम्पल्स: टू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स. शी वॉक्ड इनटू द रूम. ही रन टूवर्ड्स द गेट. वो किधर भाग रहा है, डायरेक्शन दिखी है ना, वो गेट की तरफ भाग रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन और पर्पज. इसमें कॉज भी होना, रीजन भी होना और पर्पज भी होना. कारण काय, उद्देश काय, असा हा प्रकार म्हणजे प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन और पर्पज. एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स. क्यों हो रहा है ये एक्सप्लेन करते हैं. एग्जाम्पल्स: बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम. Here is one example. The match was cancelled due to rain. वजह बताई गई है कि मैच कैंसिल क्यों हो गया, उसका कारण बताया है कॉज, उसका रीजन बताया है रेन. The match was cancelled due to rain. Preposition of manner, agent or instrument. Manner, agent or instrument show how something is done or who does it. how, कैसा कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम किसने किया, ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बताते हैं. एग्जाम्पल: बाय, विथ, लाइक. द लेटर वॉज रिटन बाय हर. द लेटर वॉज रिटन बाय हर. काम कसं झालं, काम तिच्याकडून झालं, म्हणून बाय हे प्रिपोजिशन आलं. ही कट द पेपर विथ सीझर्स. ही कट द पेपर विथ सीझर. ओके. कहाँ था प्रीपोजिशन ऑफ मैन. द लेटर वॉज रिटन बाय हर. ही कट द पेपर विथ सीजर. कंपाउंड प्रीपोजिशन, चलो देखेंगे कंपाउंड क्या है. दीज आर मेड बाय कॉम्बिनिंग सिंपल प्रीपोजिशन विथ अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल: अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, आउट ऑफ, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ. ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रॉफिक. कॉम्बिनेशन आहे, त्यामुळं या ठिकाणी आपण याला कंपाऊंड प्रिपोजिशन असं देखील म्हणतो. ओके. हियर आर सम कॉमन एरर्स विथ प्रिपोजिशन. इनकरेक्ट क्या है, ही मैरिड विथ हर. करेक्ट क्या है, ही मैरिड हर. इनकरेक्ट क्या है, शी इज गुड इन इंग्लिश. करेक्ट क्या है, शी इज गुड एट इंग्लिश. इनकरेक्ट क्या है, ही डिपेंड्स इन मी. करेक्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन मी. ओके ओके ओके. और कहाँ पे गई, हाँ आ गया, सेकंड टॉपिक आ गया, पंक्चुएशन इन इंग्लिश ग्रामर. पंक्चुएशन, ये भी टॉपिक हमने बहुत ही बढ़िया हमारे क्लास में लिया था. पंक्चुएशन. Okay, let's see what is the punctuation. Punctuation is the use of special symbol like full stop, comma, question mark, bracket, etc. to make the meaning of sentence clear. सेंटेंस की मीनिंग क्लियर होने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने पड़ते हैं. इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कुछ पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे.
फर्स्ट फुल स्टॉप, उसको पीरियड ही कहते हैं, उसका सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, सिंबल उसका। यूज टू एंड अ सेंटेन्स, कहाँ यूज करना आहे? ॲट द एंड ऑफ सेंटेन्स, वाक्य संपल्यानंतर फुल स्टॉपचा वापर करायचा आहे. एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, आय लाईक आईस्क्रीम, संपली, आईस्क्रीम खाऊन फेकून दिली म्हणून फुल स्टॉप दिला. शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड झाला, तिथेच फुल स्टॉप लागला आयुष्याला. त्यानंतर सेकंड आहे कॉमा. यूज कुठं करायचं आहे? टू सेपरेट आयटम्स इन अ लिस्ट, लिस्टमधले आयटम्स सेपरेट करण्यासाठी आपण कॉमा यूज करतो. एक्झाम्पल, आय बॉट ॲपल्स, कॉमा दिला, ऑरेंज, कॉमा दिला, बनानाज, कॉमा, आणि शेवटी अँड मँगोज घेतलं. ह्या ठिकाणीही कॉमा द्यायचा नाही, ह्या ठिकाणी कॉमा द्यायचा नाही. ओके. क्वेश्चन मार्क, थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क, उसका सिंबल यहाँ पे. यूज एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, कहाँ पे यूज करना है? एट द एंड ऑफ क्वेश्चन. एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क. ओके. देन exclamation, exclamation mark, symbol is here. Use to show strong feelings, strong feelings, that time we use exclamation mark. Example, wow, that's amazing, यहाँ पे देखो exclamation mark दिया है wow के बाद. पांचवा है apostrophe, इसका सिंबल यहाँ पे. यूज टू शो possession or in contraction. Example, Riya's book, it's raining. रियाज बुक, पजेशन दाखवायचं, त्या रियाचंच पुस्तक आहे हे, पजेशन. यस. ओके. कोटेशन मार्क. यूज टू शो डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच त्याच्यामधला प्रकार, त्यावेळेस यूज करतात. शी सेड आय एम हैप्पी, उसने क्या कहा? मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ. उसने कहा, उसके जो वाक्य है, उसके मुख से जो निकले शब्द है, वो हमें कोटेशन मार्क में रखने हैं. डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, शी सेड, मैंने कहा. यस. कोलन. यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन, यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लिस्ट इंट्रोड्यूस करायची असेल त्यावेळेस कोलन द्यायचं आणि त्यापुढे लिस्ट चालू करायची. एक्झाम्पल, यू नीड दीज आयटम्स, आयटम्सच्या पुढं कोलन दिलंय. यू नीड दीज आयटम्स, अ पेन, मग आपण वरचं कॉमा इथे वापरायला, अ पेन, अ नोटबुक, कॉमा, अँड ॲन इरेझर. झालं. त्यानंतर आहे सेमिकोलन. सेमिकोलन काय म्हणते? यूज टू जॉइन रिलेटेड सेंटेंस, रिलेशन होना तभी सेमीकोलन वहाँ पे आएगा. दोनों सेंटेंस अलग अलग होने के बाद हम वहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे सकते. एग्जाम्पल, आई हैव अ टेस्ट टुमारो, सेमीकोलन दिलं. आय नीड टू स्टडी, टेस्ट आहे म्हणून त्याला अभ्यास करायचा आहे, त्याला स्टडी करायची, म्हणून या ठिकाणी ह्या दोन्ही वाक्याचं रिलेशन काहीतरी आहे म्हणून आपण सेमीकोलन घेतला. हायपन, हायपन काय म्हणते बघू. यूज टू जॉईन वर्ड्स, वर्ड्स जॉईन करायचे हायपनना. एक्झाम्पल, वेल नोन, फादर इन लॉ, हे जे वर्ड्स आहेत ते गॅप ते जोडण्यासाठी आपण हायपनचा वापर करतो. त्यानंतर आहे डॅश. डॅश काय म्हणते? यूज टू ॲड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं कि चलो देखते हैं. एग्जाम्पल क्या कहता है? आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में जा रहा. इसी सेंटेंस की इसकी ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे डैश दे के हम
बता सकते हैं. वी वेंट टू द पार्क, इट वॉज क्लोज. इट वॉज क्लोज, वो बंद है, वही सेंटेंस है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन हमें डैश देके आगे बताना है. पैरेंथेसिस क्या है? ये नया ही प्रकार दिख रहा है. टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल, माई डॉग, अ गोल्डन रिट्रीवियर, लव्स टू प्ले. डॉग की इंफॉर्मेशन वही की वही उन्होंने देनी है. उस सेंटेंस में जिस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन इमीडिएटली वही पे वही देनी है, दैट टाइम वी यूज parenthesis. Ellipsis. Ellipsis. Let's see what is ellipsis. Use to show something is missing or unfinished. कुछ तो मिसिंग है, फिनिश्ड हो नहीं सकता. That time we use ellipsis. Example, I was going to say dash 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 but I forget. एलिप्स झालं तिथं, विसरून गेलं, त्यावेळेस आपण डॅश 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 वापरून एलिप्सिस त्याला म्हणायचं एलिप्सिस. ओके. कंप्लीट, पंक्च्युएशन मार्क्स, कंप्लीट. कंजक्शन. चलो लेट्स सी कंजक्शन क्या है. कंजक्शन देखेंगे बाबा. कंजक्शंस. A subordinating conjunction joins a dependent clause to an independent clause. कंजक्शन जोडणारे कार्य करते. आपण हे पण लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. A subordinating conjunction joins a dependent clause to an independent clause. Dependent and independent हाच महत्त्वाचा फरक आहे हे कंजक्शन समजून घेताना. डिपेंडंट क्लॉज अवलंबून आहे कोणावर तरी. इंडिपेंडंट क्लॉज स्वतंत्र आहे, त्याला दुसऱ्या क्लॉजची गरज नाही. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लॉजेस. टाइम, रिझन, कंडिशन, कॉन्ट्रास्ट, etc. Here are some common subordinating conjunction. Time, after, before, since, when, while, until. रीज़न के क्या है? बिकॉज, सिंस, एज. कंडीशन, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट. कॉन्ट्रास्ट, although, thou, even, thou, where, as, while. Purpose, so that, in order that. Comparison, than, as. Examples are here. Because it was raining, we stayed indoors. Because it was raining, we stayed indoors. I will call you after I reach home. If you study hard, you will succeed. Although he was tired, he kept working. वो थका है फिर भी काम कर रहा है. नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन वर्क इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. क्या कहता है? कोरिलेटिव कंजक्शन वर्क इन पेयर्स टू कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सारखे असावे. दे शो अ बॅलेन्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज. जो आइडिया है उसका रिलेशनशिप बैलेंस्ड होना चाहिए. कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शन. कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से हैं? बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, एज. हियर आर सम एग्जाम्पल कोरिलेटिव कंजक्शन के. बोथ रिया एंड सीता वी आर एब्सेंट. दोनों ही एब्सेंट है. बोथ रिया एंड सीता वी आर एब्सेंट. You can either come early or stay late.
he is not only smart but also hardworking. Neither Rohan nor Ravi knows the answer. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कोरिलेटिव कंजक्शन नीड पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर जरूरी है. पैरेलल इन द सेंस सेम ग्रामर स्ट्रक्चर दोनों साइड. पैरेलल स्ट्रक्चर. ओके, समरी क्या कहती है इसके देखें. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस. क्या बोलता है वो, डिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. शो टाइम कॉज कंडीशन कॉन्ट्रास्ट. क्या दिखाता है, शो टाइम कॉज कंडीशन कॉन्ट्रास्ट एटसेट्रा. एग्जाम्पल, ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट आउट. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन का क्या है, वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करते हैं, बोथ एंड आइदर और एटसेट्रा. कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो इक्वल पार्ट्स है उसको कनेक्ट करता है. एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही इज काइंड बट आल्सो जेनरस. नाउ द मोस्ट important topic, at least 4 days we spent on this topic named, the whole topic covered in our class in a summer vacation. Our class is named Navodaya Wala, online platform for students. Let's where is the tense, प्रेजेंट टेंस. इस पे हमने टोटल 4 दिन हमने वर्कआउट किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको देखा जाएगा. ओके, क्या है टेंस, प्रेजेंट टेंस. लेट्स सी व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, occur regularly or are universally true. or are universally true. जो चीज़ें जगामध्ये खऱ्या आहेत. सूर्य पूर्वेला उगवतो, कोणत्याही देशात जा, ती युनिव्हर्सली ट्रू आहे. म्हणून त्यावेळेस प्रेझेंट टेन्स आपण वापरतो. प्रेझेंट टेन्स डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ. जो अभी अभी हो रही है चीज़ें, उसे हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं. ऑकर रेग्युलरली, रोज रोज करणाऱ्या गोष्टी. और युनिव्हर्सल ट्रू, जागतिक सत्य, ह्या प्रेझेंट टेन्सच्या बाबी. सिंपल प्रेझेंट टेन्स त्याच्यामधला प्रकार, यूज हॅबिच्युअल ॲक्शन, जनरल ट्रूथ, शेड्यूल्ड इव्हेंट, स्टेट्स अँड फिलिंग्स. स्टेट्स अँड फिलिंग्स, स्टेट इन द सेंस नॉट महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब. स्टेट द माइंड स्टेट, माइंड जो दिमाग की संतुलन होता है, फीलिंग्स होती है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट्स हमने मूड म्हणू शकता तुम्ही तुमच्या भाषेत. स्ट्रक्चर काय याचं, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब. ॲड यस और ईएस, ये महत्वाचं आहे. ॲड यस और ईएस फॉर ही शी इट. ही शी इट आल्यानंतर बेस वर्बला यस किंवा ई एस प्रत्यय लावायचं. एक्झाम्पल काय, आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. एक्झाम्पल बघितलं, आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. डेफिनेशन काय म्हणती, रेग्युलरली गोष्ट होणारी आहे, रोज शाळेला जातो. शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ रही है. शी रीड्स बुक. ही शी इट आलं, दॅट्स वाय आपण रीड्स घेतलं. द सन रायझेस इन द ईस्ट. सन रायझेस इन द ईस्ट. माय फ्लाइट लीव्स ॲट 8 PM. ओके, डन. सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस बोला, क्या बोला, कंटिन्यूअस बोला. ING आएगा, कल परसों ही बताया लेक्चर में. कंटिन्यूअस ING.
किसी भी टेंस में कंटिन्यूस आ गया उस टाइम आईएनजी आएगा 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 आईएनजी आएगा. लेट्स सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है. यूज एक्शंस हैपनिंग नाउ, टेम्पररी एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स. एक्शन हैपनिंग नाउ, जो चल रहा है अभी उस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. टेम्पररी ॲक्शन, थोड्याशा काळापुरती ॲक्शन झाली त्यावेळेस. प्लॅन्ड फ्युचर इव्हेंट्स, फ्युचरमधले काही इव्हेंट्स प्लॅन करायचे असतील त्यावेळेस प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स यूज करावा लागतो. त्याचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. काय म्हणतं हे स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब आय एन जी आएगा आय एन जी. ओके, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वर्ब प्लस आई एन जी, ये उसका स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक. एक्शन हैपनिंग नाउ, ये एक्शन हो रही है, दैट्स वाई आई एम रीडिंग अ बुक. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. शी इज विजिटिंग हर ग्रैंडमा, ग्रैंडम्मा दिस वीकेंड. ओके, थर्ड टाइप है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यूज पास्ट एक्शंस, एक्सपीरियंसेस, चेंजेस अप टू नाउ. स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट हैज हैव पास्ट पार्टिसिपल, subject has have plus past participle. Examples are here. I have eaten a lunch, she has visited Paris, we have finished our homework. फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यूज एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. एक्शन जो पास्ट में चालू हो गई है और वो अभी तक स्टिल कंटिन्यू है, दैट टाइम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक्शन दैट जस्ट स्टॉप्ड, फोकस ऑन ड्यूरेशन, अभी खत्म हो गई है पर लेकिन ड्यूरेशन पे फोकस है. स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. क्या बोला, कंटिन्यूअस आएगा, आईएनजी आएगा. एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्टडीइंग for 2 hours. They have been living here since 2020. I have been working all morning. Let's see summary. Simple present tense. She writes every day. Habit, she is writing now. प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है. शी हैज़ रिटन फ्यू पोएम्स, कंप्लीटेड एक्शन एंड रिलीवेंट नाउ. प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस 8 AM, ऑन गोइंग एक्शन, चालू एक्शन है. नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर जिसका ब्राइट है उसी को टेंस में ये समझ में आएगा. फ्यूचर. चल लेट्स से सिंपल फ्यूचर टेंस. यूज टू एक्सप्रेस व्हाट हैपनिंग विद दिस. ओके, टू एक्सप्रेस डिसिजन मेड ॲट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. फ्युचर टेन्समध्ये काय यूज महत्त्वाचा. टू एक्सप्रेस अ डिसिजन मेड ॲट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. बोलताना जर एखादी डिसिजन आपण बोलत घेत असताल ते फ्युचर टेन्समध्ये. टू प्रेडिक्ट अ फ्युचर इव्हेंट ऑर ॲक्शन. प्रेडिक्ट करणे म्हणजे अनुमान लावणे किंवा एखाद्या पुढच्या संडेला काही प्रोग्राम वगैरे अरेंज करायचं आहे त्यावेळेस प्रिडिक्शन करणे इव्हेंटचं, ॲक्शनचं. टू मेक ऑफर्स, प्रॉमिसेस ऑर थ्रेट्स. प्रॉमिस करणे, ऑफर करणे या ठिकाणी आपण फ्युचर टेन्सचा वापर करतो. स्ट्रक्चर काय. सब्जेक्ट विल शाल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल फ्युचर टेन्सचा सब्जेक्ट विल शाल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल,
I will help you with that. It will rain tomorrow. She will call you later. I will go to the market. सेकंड टाइप है फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स उसका स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म एग्जाम्पल at 9 p.m. they will be watching a movie. This time tomorrow I will be flying to Paris. She will be studying at 8 p.m. थर्ड टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज क्या है टू शो दैट एन action will be completed before certain future time मध्ये ती ॲक्शन कम्प्लिटेड आहे त्यामुळं टू एम्फसाइज द कम्प्लिटेशन ऑफ ॲक्शन कम्प्लिटेशन पूर्ण झाली ॲक्शन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हॅव प्लस पास्ट पार्टिसिपल Examples, by 2026 she will have graduated. They will have finished the work before the deadline. They will have finished the project by next week. Next आहे future perfect tense. उसमें क्या कह रहा है to emphasize the duration of an activity that will continue up to a certain point in the future. फ्युचरमधल्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या सर्टन त्याचं ड्युरेशन ॲक्टिव्हिटीचं आपल्याला या ठिकाणी कंटिन्युअसमध्ये सांगता येतं स्ट्रक्चर काय सब्जेक्ट प्लस विल हॅव बीन प्लस प्रेझेंट पार्टिसिपल आयएनजी फॉर्म एक्झाम्पल्स बाय डिसेंबर आय विल हॅव बीन वर्किंग हिअर फॉर 5 years अजून झाले नाही पण बाय डिसेंबर आय विल हॅव बीन वर्किंग हिअर फॉर 5 years. ही विल हॅव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours by midnight. By next year, I will have been working here for 10 years. 10 वर्ष मी या ठिकाणी माझ्या कामाला या ठिकाणी 10 वर्ष पूर्ण होतात कधी पुढच्या वर्षी त्यानंतरचा आहे पास्ट टेन्स व्हॉट इज द पास्ट टेन्स द पास्ट टेन्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और सिचुएशन दैट ऑलरेडी हैपेंड खत्म हुई वाली चीज पास्ट में खत्म हुई वाली हो गई है पास्ट में मेरे पास्ट में मैं छोटा था हो गया ना अब बड़े हो गए हो इसे पास्ट टेंस ओके दिस कैन बी इवेंट्स दैट ऑकर्ड अ मोमेंट ago yesterday or even long ago. There are 4 types of past tense in English. Each serves a different purpose and gives us a different time relation. कितने हैं 4 है सबके 4 है इसका भी 4 है पहला है सिंपल टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज क्या है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट अ सिरीज ऑफ पास्ट एक्शन पास्ट हॅबिट्स आपल्या ज्या पास्टमधल्या काही हॅबिट्स असतील आणि पास्टमध्ये पूर्ण झालेली एखादी गोष्ट असेल किंवा अ सिरीज ऑफ पास्ट ॲक्शन सिरीज म्हणजे पास्टमध्ये झालेला पूर्ण घटनांचा क्रम ओके example I watched a movie last night she went to school he always walked to work
when he lived in Paris. Second type is past continuous tense. Past continuous tense स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट was where, present participle ing form. Use action that were in progress at a specific time in the past to show that a longer action was interrupted by a shorter one. To set the background in a story, ये सब बताया क्लास में. ओके. Action that were in progress at specific time in the past to show that a longer action was interrupted by a shorter one. To set the background of story, एखाद्या स्टोरीचं बॅकग्राऊंड टाकण्यासाठी आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करावा लागतो. एक्झाम्पल, आय वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रँग. They were playing football at 5 p.m. yesterday. While she was cooking, the children were watching TV. ये है उसके एग्जाम्पल्स. पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यूज क्या है? टू शो एन ॲक्शन दॅट वॉज कम्प्लिटेड बिफोर अनदर पास्ट ॲक्शन. दुसऱ्या पास्टमधल्या ॲक्शनच्या आधी ही ॲक्शन कंप्लीट झालेली असते त्यावेळेस पास्ट परफेक्ट टेन्स परफेक्ट. एक्झाम्पल काय? आय हॅड इटन डिनर बिफोर ही अराइव्ड. ती अजून आलीही नाही. ती पास्टमधलीच ॲक्शन, दोन्ही पास्टमधली. शी हॅड फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 8 p.m. They had left before we got there. Fourth one is past perfect continuous tense. पास्ट असो फ्युचर असो कंटिन्युअस आलं की आय एन जी येतं. स्ट्रक्चर काय? सब्जेक्ट हॅड बीन प्रेझेंट पार्टिसिपल आय एन जी फॉर्म. यूज काय? टू शो दॅट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट अँड कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट. पास्टमधल्याच एखाद्या ठिकाणी इथून चालू झालं आणि याच ठिकाणी संपलं. हे पास्टमधल्या सगळ्या गोष्टी पास्टमधल्याच इथून चालू झालं आणि ह्या ठिकाणी संपलं. ओके. I had been studying for 2 hours when she come home. They had been working at the company for 10 years before it closed. He had been running when he twisted his ankle. Here are some examples. Simple past, she left. A completed past action. क्या कहता है? कंप्लीटेड पास्ट एक्शन. पास्ट कंटिन्यूस का क्या एग्जाम्पल है? शी वॉज लिविंग. एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ पास्ट टाइम. पास्ट टाइम में ही एक एक्शन प्रोग्रेस में है, दैट्स वाई कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट क्या है? शी हैड लेफ्ट अ पास्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इव्हेंट. पास्टमधलीच ॲक्शन आहे पण पास्टमधल्याच एखाद्या इव्हेंटच्या आधी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. शी हॅड बीन लिव्हिंग अ कंटिन्युअस पास्ट ॲक्शन अप टू पास्ट पॉईंट. पास्टमधल्याच पॉईंटची ॲक्शन पास्टपर्यंतच चालू आहे त्यावेळेस. ओके. Any problem? चॅट बॉक्समध्ये प्रॉब्लेम नसला आत्तापर्यंतच्या टॉपिकमध्ये कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं की काही अडचण नाही गुरुजी, कारण आपण हे ऑलरेडी कंडक्ट केलेले लेक्चर्स आहेत.
आणि आपल्या नवोदयच्या प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाईन नवोदयवाला. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक. वर्ब्स. वर्ब्स क्या है देखेंगे. व्हाट इज अ वर्ब? लेट्स सी. क्या है भाई, तुम कई का काम कर रहा, चलो देखेंगे इसको. व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एक्यूरेंसी. क्या दिखाता है वो? एक्शन दिखाता है, स्टेट और एक्यूरेंसी. उसे वर्ब कहते हैं, क्रियापद. कई का पद, क्रिया का पद. एग्जाम्पल्स है शी रन्स. यहाँ पे रन है, क्रिया हो रही है, यहाँ पे रन वर्ब है. दे आर हैप्पी, स्टेट है, स्टेट. मेंटली स्टेट, पोजीशन, मेंटली. इट रेन yesterday, accuracy. ॲक्शनचं एक्झाम्पल घेतलं. कसं ॲक्शन, स्टेट, ॲक्युरन्सी. हे डेफिनेशन आपण बायफर्गेशन करून समजली. त्यानंतर काय बघायचं? त्यानंतर बघायचं टाईप्स ऑफ वर्ब. वर्बचे प्रकार. मेन वर्ब, त्यालाच आपण ॲक्शन वर्ब देखील म्हणतो. ॲक्शन वर्ब. शो ॲक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. किसने की है? सब्जेक्ट ने जो एक्शन की है, परफॉर्म किया है, वो दिखाने का काम मेन वर्ब करता है. एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, ऑब्जेक्ट अ लेटर. डन, डन. ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, a letter, object. They play cricket. ये हो गया मेन वर्ब, जिससे हमें पता चलता है कि शो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. जो एक्शन सब्जेक्ट ने की है, परफॉर्म की है, वो मेन एक्शन, मेन वर्ब कहलाता है. लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब. Helping verbs, auxiliary verbs. Helping verb, auxiliary. Help the main verb to show tense, mood or voice. व्हॉइसच्या लेक्चरमध्ये हेल्पिंग वर्बचा किती कार्यक्रम होता ते काल परवा पाहिलेला आपण. हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेन्स, मूड और वॉइस. एक्झाम्पल, शी इज सिंगिंग मेन वर्ब. त्याला मदत कोण करायले? इज करायले. त्याला मदत कोण करायले? त्याला मदत हे इज करायले. शी इज अ सिंगिंग. वी हॅव फिनिश्ड होमवर्क. कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स इज, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did. These are some helping verbs, common helping verbs. ओके, देखेंगे आगे क्या है. नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब. लिंक करना पड़ेगा कुछ तो, किसके साथ? तो कोई तो लिंक करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? चलो देखते. कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ मोर इन्फॉर्मेशन. मोर इन्फॉर्मेशन. जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो लिंकिंग करना है. किसकी? सब्जेक्ट की. ही इज अ टीचर. दे सीम टायर्ड. ही इज अ टीचर, दे सीम tired. These are example of linking verb. Transitive verb. Require an object to complete the meaning.
ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है जो उसका सेंटेंस का पूरा मीनिंग हमें याद रह सके, हमें समझ में आए पूरा मीनिंग. एक्झाम्पल, शी बॉट अ बुक. शी बॉट ऑब्जेक्ट काढून टाकला. या सेंटेन्सला काही अर्थ प्राप्त होईल का? नो. याला काहीच अर्थ प्राप्त होणार नाही. ऑब्जेक्ट त्याला गरजेचं आहे. रिक्वायरमेंट काय त्याची? ऑब्जेक्ट. शी बॉट अ बुक. आय एट ॲन ॲपल. आय एट ॲन ॲपल. इंट्रांजिटिव वर्ब काय म्हणते? डू नॉट नीड. मुझे ज़रूरत नहीं. मुझे ज़रूरत नहीं है. डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल, ही स्लीप्स. ही स्लीप्स. उसके आगे कुछ ज़रूरत नहीं. बर्ड्स फ्लाई. हाँ, बर्ड्स फ्लाइज करते हैं. उसके आगे ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं. दैट्स वाई इंट्रांजिटिव वर्ब वी सेज दैट these are intransitive verb. Here is some forms, verb forms. Important. Okay. Verb forms. Base form, past tense, past participle. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Play, play, played, played. Tense of verb. Verb का tense. Present tense, she reads. Past tense, she read. Future tense, she will read. Okay. वर्ब में और एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन अ नंबर एंड पर्सन. जो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, डिसएग्री नहीं. सब्जेक्ट सिंगुलर, ही रन्स सिंगुलर, दे रन प्लूरल. Here is some practice question. I will provide you PDF. Please solve these problems. I already have provided this type of PDF in my chat, in my WhatsApp group. Yes, adverb. Adverb. What is an adverb? क्या है adverb? An adverb is a word that modifies, adds more meaning to verb, an adjective or another verb. ॲडवर्ब काय करते? मॉडिफाय करते, सेंटेन्सला मॉडिफाय करते, सेंटेन्सच्या मिनिंगला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन देते, ॲड्स मोर मिनिंग टू. कोणाची? वर्बची. अन ॲडजेक्टिव्हची ऑर अनादर वर्ब, अनादर ॲडवर्ब, याची माहिती देत आहे ॲडवर्ब. सिंगल वर्ड आहे. ॲडवर्ब इज अ वर्ड. टाइप्स ऑफ ॲडवर्ब विथ एक्झाम्पल. टाइप्स ऑफ ॲडवर्ब. टाइप्स. ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर. पहिला प्रकार ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर. मॅनर्स आहेत का तुला? इन द सेन्स हे प्रकार. दे टेल हाऊ ॲन ॲक्शन इज डन. कृती कशी घडली, कशी घडली हे दाखवितं ॲडवर्ब ऑफ मॅनर. इट टेल्स दॅट हाऊ ॲन ॲक्शन इज डन. एक्झाम्पल, शी सिंग्स ब्युटिफुली. कशी सुंदर असं ती गाणं म्हणते. ही रन्स क्विकली. कसा पळतोय? जोरात पळतोय, वेगानं पळतोय. हाऊ ॲक्शन इज डन. रन ॲक्शन आहे, पण कशी आहे? क्विकली आहे. सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स आहे ॲक्शन, ती कशी आहे? ब्युटिफुली. ॲक्शनच्या संदर्भात माहिती देत आहे. त्यानंतर आहे ॲडवर्ब ऑफ टाईम. ॲडवर्ब ऑफ टाईम. टाईम म्हटलं की आपल्याला घड्याळ आलं पाहिजे लक्षामध्ये.
हे असे काटे, हे घड्याळ. एडवर्ब ऑफ टाइम. दे टेल व्हेन समथिंग हैपन्स. कब हो रहा है उसका टाइम रिलेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम रिलेशन उसका हमें पता चलता है. दे टेल व्हेन समथिंग हैपन्स. एग्जाम्पल, वी विल गो टुमारो. कब गो एक्शन है लेकिन टाइम रिलेशन क्या हो रहा है, टुमारो. ही अराइव्ड, अराइव्ड एक्शन है लेकिन लेट उसका टाइम लाइन दिखा रहा है. ओके. एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर. दे टेल वेयर समथिंग हैपन्स. कहाँ पे क्या हो गया है ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड. कहाँ खेल रहे हैं, खेलना वर्ब है लेकिन कहाँ खेल रहे हैं ये पूछने के बाद वेयर दे आर प्लेइंग, आंसर क्या मिलता है, दे आर द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड. शी लुक्ड एवरीवेयर. शी लुक्ड एवरीवेयर. प्लेस का हमें वहाँ पे अंदाज आता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टेन. दे टेल हाउ ऑफ्टेन समथिंग हैपन्स. बार बार हो रही है चीज़ के एक ही बार हो रही है, यह फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें देखने को मिलती है. एग्जाम्पल, ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज की. कि आज ही भूल गया है क्या, नहीं. ही ऑलवेज फॉरगेट्स की, वो फ्रीक्वेंसी है. ऑलवेज ये वर्ड एडवर्ब दिखा रहा है कि ऑलवेज फॉरगेट्स हिज की. आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रॉम चाइल्डहुड टू नाउ, ये 20-30 साल में उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी. 5वां है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंड. कितना है प्रमाण वो बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. दे शो द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव. किसकी इंटेंसिटी, दे शो द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल. शी इज व्हेरी, इंटेन्सिटी आहे, तीव्रता आहे तिच्या सौंदर्याची. शी इज अ व्हेरी ब्युटिफुल. आय एम टू टायर्ड, मी खूप खूप थकलोय. इंटेन्सिटी आहे, तीव्रता आहे, प्रमाण आहे. ओके, these are some common adverbs. manner, quickly, slow, slowly, well, badly, time. ये दिए वाले हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में, PDF फाइल में दिए हैं. These some examples also given you. Now last one topic, voice in English grammar. Yes, let's see क्या है voice. Voice in grammar shows whether the subject of sentence performs the action. Whether the subject of sentence performs the action called active voice or receives the action passive voice. सब्जेक्ट स्वतः ॲक्शन करत आहे तर ॲक्टिव्ह व्हॉइस. सब्जेक्टकडे ॲक्शन रिसीव होत असेल, ॲक्शन सब्जेक्टकडे रिसीव होत असेल त्यावेळेस पॅसिव्ह व्हॉइस त्याला म्हणायचं. पॅसिव्ह व्हॉइस पहिल्या ह्याचा सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स परफॉर्म्स द ॲक्शन ॲक्टिव्ह व्हॉइस किंवा रिसीव्स द ॲक्शन पॅसिव्ह व्हॉइस. There are two types of voice, active voice, passive voice. Let's see one by one. Active voice. In active voice, the subject does the action of the verb. क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, वो वर्ब की जो सेंटेंस में है उसकी एक्शन कौन कर रहा है, खुद सब्जेक्ट कर रहा है.
स्ट्रक्चर क्या आएगा उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में नॉर्मल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। लिखने की क्रिया किसके हाथों से हो रही है, उसके। शी राइट्स अ लेटर। द डॉग चेस्ड द कैट। द डॉग चेस्ड द कैट। दे विल प्ले फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। पैसिव वॉइस का क्या कार्यक्रम है, लेट्स सी। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, रिसीव कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, वो रिसीव कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ टू बी, पास्ट पार्टिसिपल V3, बाय, सब्जेक्ट, ऑप्शनल इफ द सब्जेक्ट इज ऑप्शनल। असेल तर सब्जेक्ट घ्यायचा, नसेल तर ऑप्शनल। एक्झाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर, बाय घेतलं, पास्ट पार्टिसिपल V3, रिटन घेतलं, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सब्जेक्ट शेवटी घेतला हर। द कॅट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। वरचेच एक्झाम्पल होते ते। द कॅट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। चेस्ड वर्बचं तिसरं रूप, डॉग तिकडे सब्जेक्ट परफॉर्मन्स करत होता, द डॉग, तो आता इकडे खाली आलेला आहे। लेट्स सी सम इम्पॉर्टंट स्टेप टू चेंजिंग active to passive voice. These steps are also important. Let's see step number 1. Identify the subject, verb and object. Identify क्या करना है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन एक्टिव वॉइस, यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। बायफर्गेशन केलं, सब्जेक्ट बाजूला काढला, द टीचर, द टीचर सब्जेक्ट को बाहर निकाला। वर्ब क्या है, एक्सप्लेन्स, उसको निकाला। ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन। Identify the subject, verb and object. This is the step 1 for changing active to passive voice. Let's see step number 2. Move the object to the subject's place. Move the object. Move the object to the subject place. यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें लाना है सब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ लाना है, सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट, मूव द ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट प्लेस, रख दिया। ओके। थर्ड स्टेप क्या कहती है, चेंज द वर्ब टू पैसिव फॉर्म, यूज अप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म V3. V3चं रूप वापरायचं, V3. द लेसन इज एक्सप्लेन्ड. वर्ब काय होतं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स होतं, त्याचं V3 काय केलं, एक्सप्लेन्ड. त्यानंतर स्टेप 4, ॲड बाय सब्जेक्ट. शेवटी काय करायचं आहे, ॲड बाय प्लस सब्जेक्ट. स्टेप 4 टोटल पॅसिवाइज झाला पहिल्या सेंटेन्सचा. द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, पहिलं एक्झाम्पल घेतलं होतं, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. ह्या त्या स्टेप आहेत, त्या फॉलो करावं लागतात. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ओके. Now let's see tense wise rules for active and passive voice. According to tense, how the sentence run. Let's see. All structure given by me in our live lecture. So here is only example. Simple present tense. I want to change color. Okay. Density. कमी. Simple present tense. She writes a letter. S plus V plus object. हे स्ट्रक्चर
ह्या ठिकाणी डायरेक्ट यूज केले. अ लेटर इज रिटन बाय हर, पॅसिव्ह वॉइस, सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस. प्रेझेंट कंटिन्युअस, शी इज रायटिंग अ लेटर, त्याचा पॅसिव्ह. अ लेटर इज बिंग रिटन बाय हर. Present perfect, she has written a letter, passive. A letter has been written by her. Simple past, she wrote a letter. A letter was written by her. Past continuous, she was writing a letter. A letter was being written by her. Past perfect, she had written a letter. A letter had been written. Simple future, she will write a letter. A letter will be written by her. Future perfect, she will have written a letter. ऑब्जेक्ट घेतला सब्जेक्टच्या जागी. अ लेटर विल हॅव बीन रिटन बाय हर. टोटल स्ट्रक्चर्स जे आहेत ते क्लासमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो प्लीज विजिट आवर लास्ट लेक्चर. Keynotes. Not all verbs can be used in the passive voice. Intransitive verbs, sleep, go, arrive, cannot form passive voice. काय सगळ्याच वर्ब्सचं आपण हे करू शकत नाही. स्लीप, स्लिप्ड, गो, अराइव्ड असं नाही चालत. ही स्लिप्स कॅन नॉट बी मेड पॅसिव्ह. पॅसिव्ह वॉइस इज ऑफ्टेन यूज वेन द डुअर इज अननोन. डुअर करणारा अननोन असेल. माय फोन वॉज स्टोलन, ह्याचा पॅसिव्ह करता येतं. टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑर ॲक्शन, द रिझल्ट वेअर अनाउन्स्ड. द सायंटिफिक रायटिंग, द experiment was conducted. These are some examples. Try to solve these whole examples in our PDF. Okay. Bombastic. Okay. Now everything is completed. Almost how many topics covered? Voice 1, adverb 2, verb 3 verbs. Okay, at least 10 topics covered in the whole revision lecture. If you like this video, please share, share and subscribe. Thanks you. Okay, bye. Have a nice day. Take care.